اور اگر ایک شخص اپنا موبائل فون دن میں 5 سے 6 گھنٹے استعمال کر رہا ہے اور اگر اس کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو وہ 10 سال اور 4 مہینے صرف اور صرف موبائل فون پر آسٹریلیا میں ایک اور ریسرچ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ 10 میں سے 9 لوگوں کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ان کے موبائل فون کی بیٹری اباؤٹ ٹو ڈائی ہوتی ہے، یعنی بیٹری ختم ہونے والی ہے۔ نارمل یوزر دن میں 2600 بار اپنے موبائل فون کو ٹچ کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عادل صابر ہوں اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ میں آج کے ایپیسوڈ میں آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں، اور آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم لوگ بات کریں گے موبائل ایڈکشن کے بارے میں کہ موبائل کا نشہ کیا ہے، اس ایڈکشن کے سائنس کیا کیا ہیں، اور پھر اس کے نقصانات کیا ہیں، اور پھر اس کا حل کیا ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ موبائل ایڈکشن سے بچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے مختلف ڈرگز کے نشے کے بارے میں سنا ہوگا، مختلف ڈرگز ایڈکشن کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن موبائل کا نشہ جس میں بہت سارے لوگ اس ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو محسوس تک نہیں ہو رہا ہوتا کہ موبائل کا ہم کو نشہ ہو گیا ہے یا موبائل ایڈکشن ہمیں ہو چکی ہے۔ موبائل ایڈکشن کو آج کل کی زبان میں نوموفوبیا سے جانا جاتا ہے کہ موبائل نہ ہونے کا خوف، کہ آپ کو ایک عجیب سا خوف ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس موبائل نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کے سائنس ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں کہ آیا ہمیں موبائل ایڈکشن ہے یا نہیں۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے موبائل کو دیکھنا اور نوٹیفیکیشنز وغیرہ چیک کرنا، ہر وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا کے بارے میں سوچنا، زیادہ سے زیادہ پکچرز لینا اور فیس بک پر اپلوڈ کرنا، دوسرے لوگوں سے کمپیریزن کا، جو ہے کھانا سامنے رکھا ہوا ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی تصویریں لے رہے ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ اپنے فوٹوز پوسٹ کرنا اور پھر اس کے بارے میں کمنٹ اور لائک چیک کرنا، بغیر کسی مطلب کے بار بار موبائل کو چیک کرنا، اس پہ سکرولنگ کرنا، زیادہ تر وقت فیس بک پہ سکرولنگ کرنا، ٹک ٹاک پہ سکرولنگ کرتے رہنا، اور جو ہی نوٹیفیکیشن ساؤنڈ آئے تو فوراً سے موبائل کو چیک کرنا۔ تو یہ سارے اس طرح کے بہت سارے سائنز ہیں موبائل ایڈکشن کے بارے میں۔ میں اس ویڈیو میں انشاءاللہ موبائل چلانے کے خلاف بات نہیں کروں گا بلکہ اس کے مثبت استعمال کے بارے میں بات کروں گا کہ کس طرح سے ہم لوگ جو موبائل کا استعمال ہے اس کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی جو آبادی ہے وہ تقریباً 8 بلین کے قریب ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ 7 بلین لوگوں کے پاس موبائل موجود ہے۔ 2016 میں ریسرچ کی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ ایک نارمل یوزر دن میں 2600 بار اپنے موبائل فون کو ٹچ کرتا ہے، اور ایک اور ریسرچ میں بتایا گیا کہ 18 سے 29 سال کے درمیان جو لوگ ہیں وہ ایک دن میں آج کل کے دور میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے تک موبائل استعمال کرتے ہیں، اور اگر ایک شخص اپنا موبائل فون دن میں 5 سے 6 گھنٹے استعمال کر رہا ہے اور اگر اس کی عمر 50 سال ہوتی ہے تو وہ 10 سال اور 4 مہینے صرف اور صرف موبائل فون پر استعمال کرتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ لمحہ فکریہ ہے ہم لوگوں کے لیے کہ اگر ہم لوگ 4 سے 5 گھنٹے روزانہ موبائل یوز کر رہے ہیں اور اس کا کوئی مقصد یا اس کے بعد کوئی بینیفٹ ہم لوگوں کو نہیں ملتا تو کس قدر ہم لوگ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یعنی کہ اپنی عمر کے 10 سے 12 سال ہم لوگ صرف موبائل پر گزار دیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، جس میں ٹک ٹاک میں سکرولنگ کرنا ہے، فیس بک پہ سکرولنگ کرنا ہے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم جتنے بھی ہیں، اور جن میں ہمیں اس کے اینڈ پہ ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹے گا یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں سرو کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کتنا عمل کیا۔ تو ہم لوگوں کو ضرور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جس دن اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سوال پوچھیں گے ہم انہیں کیا جواب دیں گے کہ ہم لوگوں نے 3 4 5 گھنٹے فیس بک پر صرف اپنی تصویروں کے کمنٹ چیک کرنے، ان کے لائک چیک کرنے اور ٹک ٹاک پر سکرولنگ کرتے ہوئے گزارے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنا وقت قیمتی سے قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آسٹریلیا میں ایک اور ریسرچ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ 10 میں سے 9 لوگوں کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے جب ان کے موبائل فون کی بیٹری اباؤٹ ٹو ڈائی ہوتی ہے، یعنی بیٹری ختم ہونے والی ہوتی ہے۔
और तकरीबन जितने भी हम नौजवान लोग हैं, हम मोबाइल फ़ोन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ताकि हम बोर ना हों, अपनी बोरियत को दूर करने के लिए। और इसी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी बीमारियां हम नौजवानों में ज़्यादा होती जा रही हैं। हम लोग इसके नुकसानात के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक और तहकीक में बताया गया 95% लोग सोने से पहले मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं। हालांकि डॉक्टर्स की ये रिकमेंडेशन होती है कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल फ़ोन को अलग कर दें ताकि आप अच्छी नींद सो सकें। एक दिन में हमारे दिमाग में 70,000 ख्यालात आते हैं और वो इस बुनियाद पर होते हैं कि हम लोग क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर हमारा ज़्यादातर वक्त सोशल मीडिया पर गुजरेगा और उन वीडियोस को देखते हुए गुजरेगा जिनका कोई ना तो दुनिया में कोई फ़ायदा है और ना आखिरत में कोई फ़ायदा है, हमारे दिमाग में उसी तरह के ख्यालात आएंगे। जब उसी तरह के ख्यालात आएंगे तो हम उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे और जो हम सोचेंगे फिर उसी तरह का हम अमल करेंगे। यानी नतीजा ये निकलेगा कि हम लोग डेली लाइफ में जो काम करेंगे वो भी उन वीडियोस के मुताबिक ही करेंगे। तो आजकल हर चीज़ सामने है आप लोगों के। मफ़हूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 चीज़ों का फ़ायदा उठा लो 5 चीज़ों के पहले। नंबर 1 कि अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम बूढ़े हो जाओ। अपनी सेहत से फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम बीमार हो जाओ। अपनी दौलत से फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम गरीब हो जाओ। अपने फ़ारिग वक्त का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम मसरूफ़ हो जाओ। और अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा उठा लो इससे पहले कि तुम मौत के करीब पहुंच जाओ। लेकिन जो हमारे पास फ्री टाइम होता है उसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अल्लाह ताला की इबादत करके, दीन को सीख के और दीन के बारे में इल्म हासिल करके। ना कि हम लोग जो ही हमें थोड़ा सा वक्त मिले तो हम फेसबुक पर चले जाएं, टिकटॉक पर स्क्रॉलिंग शुरू कर दें या और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर चले जाएं। और फिर हम लोग काम के दौरान मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और काम पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते कि जिस तरह से हम लोगों को देनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे उस काम में तरक्की करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि इस पर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजार सकें। इसके पीछे लाखों बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए होते हैं। ये ऐसे ही एप्लीकेशन आपके सामने नहीं आ जाती और आप जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने लग जाते हैं। और इसी तरह आँखों की एक बीमारी इंसोम्निया दिन ब दिन ज़्यादा होती जा रही है। इस बीमारी में क्या होता है कि एक इंसान को नींद ज़्यादा नहीं आती। तो मैक्सिमम डॉक्टर्स यही कहते हैं कि मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये बीमारी ज़्यादा हो रही है। और बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हमें नींद नहीं आती, नींद बिल्कुल डिस्टर्ब है। बहुत सारे हम नौजवान लोग पूरी रात मोबाइल फ़ोन पर गुजार देते हैं और जब फिर अगले दिन या तो हम स्कूल, कॉलेज या काम पर जाते हैं तो उस टाइम हम पूरा दिन हम लोगों को नींद आई हुई होती है। हम लोग क्लास में होते हैं तो हमारा जहन कहीं और होता है। उसकी मेन वजह यही होती है कि पूरी रात मोबाइल फ़ोन पर गुजार देना और सुबह जब हम लोग स्कूल, कॉलेज या काम पर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा, क्योंकि बॉडी को तो रेस्ट चाहिए होती है और वहाँ पे हम लोगों को नींद आ रही होती है और ऊँघ आ रही होती है। ना कुछ समझ में आ रहा होता है और ना हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं और ना हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। हम हमेशा उस शख्स को अहमियत दे रहे होते हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन होता है और जो हकीकी हमारे तल्लुकात होते हैं, हकीकी जो रिश्तेदार, रिलेटिव्स होते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। कि जो मोबाइल पे हमारे साथ ऑनलाइन है हम उसके साथ तो पूरी तवज्जो से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारे सामने, जो हमारे इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। मोबाइल पर ज़्यादा वीडियोज़ देखना, गेम्स खेलना और न्यूज़ फीड्स चेक करते रहना, ये आपके तालीमी निज़ाम को और आपके काम करने की सलाहियत को बुरी तरह मुतासर करता है। ये आपकी माशरती और समाजी ज़िंदगी में आपके किरदार को बुरी तरह मुतासर करता है। और जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस देखते हैं जिसमें फ़हाशी, उरियानी और तरह तरह का नेगेटिव कंटेंट होता है तो फिर इसमें आपके जज्बात बुरी तरह से मुतासर होते हैं, आपका सोचने का अंदाज़ बदल जाता है। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से हम लोग कोई भी काम वक्त पर नहीं कर पाते हैं, इवन कि वो नमाज ही क्यों ना हो। कुछ पिक्चर्स और देख ली, कुछ न्यूज़ फीड और देख लेते हैं, कुछ वीडियोस और देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे और फिर वो आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा नमाज पूरी लेट हो चुकी होती है। और कई ऐसे दुनियावी काम हैं जो हम लोग मोबाइल को ज़्यादा वक्त देने की वजह से उनको लेट कर देते हैं। मोबाइल फ़ोन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आप तन्हाई पसंद हो जाते हैं और हम लोग कभी मोबाइल फ़ोन पर तो बहुत अच्छी तरह से बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जब बाहर गैदरिंग में जाते हैं या कुछ ज़्यादा लोगों में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग बात नहीं कर पाते, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होती हैं।
हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं होता है कि हम वहाँ पे बात कर सकें। इसमें मोबाइल ज़्यादा आपको तन्हाई पसंद बना देता है। हम लोग अक्सर दूसरों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग के अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आते। हम लोग अक्सर वही कुछ कर रहे होते हैं जो हम लोग मोबाइलों पे देख रहे हैं। और आजकल हम लोग जिस तरह से मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम इसमें अपने कीमती वक्त को ज़ाया कर देते हैं। घंटों हम लोग सोशल मीडिया पे और टिकटॉक पे और बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और एंड ऑफ द डे हमारे पास कोई इल्म नहीं आ रहा होता, कोई कुछ भी नहीं हो रहा होता, सिर्फ अपने वक्त को ज़ाया करने के अलावा। 68% डाइवोर्स इस वजह से हुए हैं, पार्टनर्स में से किसी को भी मोबाइल फ़ोन पर दूसरा पार्टनर मिल गया या दूसरा लवर मिल गया और उन लोगों ने एक दूसरे को तलाक दे दी। 68, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। और ये किस तरह का नशा है कि हम लोग जब हम लोगों को कभी 2 या 4 मिनट भी मिलते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि चलो मोबाइल ऑन कर लिया। कभी हम लोग अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं लेकिन हम अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ना कि हम लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और ना वो कुछ। इसके अलावा बहुत सारे नुकसानात हैं। मैं अगर इस वीडियो में बताना चाहूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हर बंदे को बेहतर पता है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करता है कि वो किस किस तरह से अपने वक्त को जो है वो बर्बाद कर रहा है और किस किस तरह से हम लोग वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो हमें ज़रूर इस बारे में सोचना चाहिए कि आया हम लोग ये जो वक्त ज़ाया कर रहे हैं इसका हमें अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग मोबाइल एडिक्शन से जान कैसे छुड़ा सकते हैं और किस तरह से इस नशे से ख़ुद को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो कभी ख़ुद बैठकर अपना मुहासबा करें और सोचें कि ये जो मोबाइल फ़ोन को इतना वक्त दे रहा हूँ, इसका आया मुझे कोई दुनियावी या आखिरत की ज़िंदगी में बारे में कोई इसका मुझे फ़ायदा हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा तो खुदारा अपने वक्त को कीमती जानें, इसको प्रोडक्टिव बनाएं और इसको किसी ऐसी जगह पे सर्व करें कि जहां से आपको कुछ हासिल हो। इसके सोल्यूशन में कुछ सेल्फ़ कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं जो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें स्क्रीन टाइम है और उसमें यह है कि आप अपना स्क्रीन टाइम नोट कर सकते हैं कि आप कितना देर मोबाइल पर ऑनलाइन रह रहे हैं या कितने देर आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑन रही है। मोमेंट एक एप्लीकेशन है, फ्लिप्ड एक एप्लीकेशन है, उसके बाद स्पेस एक एप्लीकेशन है। ये सारी एप्लीकेशंस आपको ज़रूर इंस्टॉल करनी चाहिए और ये आपको बताती हैं कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल के वक्त को कम करना है और किस तरह से ज़्यादा अपने वक्त को जो है वो प्रोडक्टिव बनाना है। उसके बाद कोशिश करें कि जो अपना बेड है उससे चार्जर को हमेशा दूर प्लग इन करें। चार्जर आपके बेड के करीब नहीं होना चाहिए। जब आप घर में दाखिल हों तो मोबाइल को किसी एक कैबिनेट में या किसी एक उस पर रख दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मोबाइल के बजाय घर वालों को दे सकें। जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस हैं उनकी नोटिफिकेशन ऑफ़ कर दें। जब आपके पास नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी तो आप मोबाइल को कम वक्त देंगे। और कोशिश करें कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें। मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाना ही बंद कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्रोम के ज़रिए लॉगिन करें। क्रोम के ज़रिए चूँकि एक थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है तो वो आप छोटी मोटी चीज़ के लिए या वैसे ही चेक करने के लिए उसको लॉगिन नहीं करेंगे जब तक आपका कोई ज़रूरी काम नहीं होगा सोशल मीडिया पर। तो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं तमाम अपनी होम स्क्रीन से हटा दें, अनइंस्टॉल कर दें और क्रोम के ज़रिए हर एप्लीकेशन में लॉगिन करें। अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है उसको फिंगरप्रिंट्स और फेस आईडी से हटाकर बड़े पासवर्ड पे लगा दें। उसमें अपना लॉन्ग पासवर्ड एंटर करें, क्योंकि जब आप कभी भी किसी छोटी मोटी चीज़ के लिए मोबाइल फ़ोन को ऑन करना चाह रहे होंगे तो आपको खुद बहुत दिल नहीं करेगा कि इतना लंबा पासवर्ड खोल के सिर्फ ये काम करना है तो रहने दो। दिन में कोई एक टाइम मुख्तस कर लें और 1 या 2 घंटे जिसमें आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें आप तमाम कर सकते हैं। अपना एक टाइम टेबल बना लें कि इस टाइम आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे और उस दौरान आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि पूरा दिन थोड़ी देर बाद मोबाइल चेक करना। आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा सकते हैं, फ़्लाइट मोड लगा सकते हैं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बयानात सुनें, लेक्चर्स सुनें और प्रोडक्टिव पॉडकास्ट हैं वो सुनें ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। कम से कम आपके पास कोई ना कोई इल्म आ रहा हो, कोई ना कोई आप नई चीज़ उससे सीख रहे हों। हकीकत को तलाश करने की कोशिश करें, ना कि पूरा दिन फेक देखते हुए अपना पूरा दिन गुजारें। सोशल मीडिया पे ज़्यादातर जो मवाद होता है वो फेक होता है, उस पर फ़िल्टर यूज़ किए गए होते हैं, उसको मज़ीद एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें रंग भरे गए होते हैं। हकीकी चीज़ों के बारे में तलाश करें, सबसे अलग सोचें, कुछ नया करना चाहें, लोगों को कॉपी करना छोड़ दें। कोशिश करें कि अपने बच्चों के सामने मोबाइल को बहुत कम से कम इस्तेमाल करें।
کیونکہ جب آپ موبائل اپنے بچوں کے سامنے زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس ٹائم آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت ہی کوئی اچھی چیز ہے کہ جس کو ہمارے والدین اتنا زیادہ وقت دے رہے ہیں، تو کب ہمارے ہاتھ میں یہ آئے گی اور ہم اس کو استعمال کریں گے۔ اپنے بچوں کو اس بارے میں آگاہ کریں اور اس کے نقصانات کے بارے میں ڈسکس کریں، اور ان لوگوں کو اس بارے میں گائیڈ کریں کہ کس طرح سے وہ لوگ اپنا قیمتی وقت کن چیزوں پر سرو کریں۔ موبائل فون کو ایک کتاب سے ریپلیس کریں، کوئی بھی کتاب آپ پڑھنا شروع کر دیں موبائل فون کی جگہ۔ جب آپ بور فیل کر رہے ہوں تو کوئی کتاب اٹھا لیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی عادت بنائیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو سکون ہم لوگ موبائل پر ویڈیوز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہ میری ذکر میں ہے، میری یاد میں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، آن لائن سے زیادہ پروڈکٹیو فزیکل میٹنگز کو ترجیح دیں۔ اپنا ایک کانٹینٹ سٹارٹ کریں، نہ کہ دن بھر دوسروں کے کانٹینٹ دیکھتے رہیں۔ کانٹینٹ بنانے والے بنیں، نہ کہ ہمیشہ دوسروں کو کاپی کرنے والے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا کانٹینٹ بناتے ہیں، نہ کہ پورا دن دوسروں کو کانٹینٹ کو دیکھنے میں ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت گیدرنگ میں گزاریں، لوگوں میں گزاریں۔ اس میں آپ کی پبلک سپیکنگ، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بیٹر ہوں گی۔ نئے لوگوں سے ملیں، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں، ان کے حالات کے بارے میں جانیں۔ اس سے آپ کو بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے اور بہت ساری نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر اس چیز کے بارے میں پوچھیں گے کہ جو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی اور اپنے ہاتھوں سے کی، اور جس طرف ہمارے پاؤں ہم کو لے کے گئے، یعنی کہ ہمارے جسم کے تمام اعضاء اس دن اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ اور ایک بڑی پروڈکٹیو بات میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو اس کے نقصانات کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کر دیں۔ جب آپ لوگوں کو اس کے نقصانات کے بارے میں گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب آپ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ خود بخود آپ کو اس چیز سے نفرت ہوتی جاتی ہے اور آپ خود بخود اس چیز کو اگنور کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا کریں، اور ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔